आपसे बात करना चाहेंगे सर, ये प्लेटो के सर 5 स्टेजेस थे ना गवर्नमेंट के। जी। एरिस्टोक्रेसी, टाइमोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी, जी। ओलिगार्की ओके। एंड सर डेमोक्रेसी और टिरनी। तो सर आप इनके बीच में एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये पांचों क्या है और इनके बीच में क्या डिफरेंस है और एक से दूसरे में हम कैसे जाते हैं। दोबारा यार, अब मुझे इतना याद तो नहीं है, मैंने बड़ी जमाने पहले लेक्चर, एक एक का नाम लेते जाओ, मैं बताता जाता हूँ। ओके जी सर। हाँ। सर सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस अकॉर्डिंग टू प्लेटो है एरिस्टोक्रेसी। Okay, because he was himself an Athenian aristocrat, belonged to the noble families. So he has always believed that some people are superior to others. That is why the whole state project is to create the master race. You know, you should select people, it's called eugenics, to produce the master race. So aristocracy is the natural leaders of society. So if this is one of the actually what I remember about Plato is not so much these 5, but the 6 that who was it now? Was it Plato or was it Aristotle who gave, there is, yeah, I think that is Aristotle. We'll come to that. But these 5 stages, if you name them, I can give you my comments. But I don't think I remember that being a very important point that Plato ever made. But let's discuss. सर एरिस्टोक्रेसी से उनका मतलब ये नहीं था, जैसे आपने यूजेनिक्स का मेंशन किया ना, तो सर मॉडर्न में लेट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में तो ये रेशियल कॉन्सेप्ट बन गया। पर प्लेटो का आइडिया ये भी था कि एरिस्टोक्रेट्स वो हैं जो विल रूल बाय रीजन विदाउट एनी, मतलब और कोई चीज उन्हें रूल नहीं करेगी, रीजन ही उन्हें रूल करेगा। मतलब एक नोबल पैशन है रीजन, वो ही उनके रूल को मतलब आगे रहता है। तो वो तो फिलोसफर किंग ही है ना उसका। जी जी। एरिस्टोक्रेसी तो नहीं है, फिलोसफर किंग की बात है। जी सर, एक्चुअली फिलोसफर किंग्स को उसने एरिस्टोक्रेसी में ही डिफाइन किया है कि फिलोसफर किंग्स वो हैं जो रीजन के थ्रू रूल करेंगे। That's right. Then we are agreed, because I was a bit surprised कि ये एरिस्टोक्रेसी वाली बात से ज्यादा ऊपर तो एक फिलोसफर किंग की है। जरूरी नहीं कि वो एक हो, वो 3-4 भी हो सकते हैं, but that's a very special class of people. Let's say this is the aristocracy. Okay, the next. सर उनका मानना उनका सर प्लेटो का मानना था कि एक क्लास होती है एरिस्टोक्रेट्स, और उसमें सर उन्होंने इंटरेस्टिंगली विमेन को भी कहा था, उनको भी बराबर हक है, मतलब मैन के हिसाब से। प्लेटो वाज द एंशिएंट फिलोसोफर जिसका कहना था कि औरतों का भी मतलब बराबर, मतलब रीजन उनके पास भी उतना ही है जितना मतलब किसी के भी पास होता है। नहीं, यहाँ पे आई हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ये दिस इज वन पोजीशन। वो ये है कि इफ यू लुक एट द फिलोसफर किंग of Plato, then here is a person without any emotions, any sentiments, only ruled by reason. And a woman then has to fulfill these very male characteristics in order to qualify. What I think Plato did was that since he was into deductive logic, he began with this basic assumption that all free citizens, would meet and at the dead of night or in the dark, they will cohabit with one another, and then they will produce this very special class of people, who would then qualify through education. There is a process of elimination until you finally reach this coveted class of the philosopher king, or whatever you call the aristocracy. So it's a long drawn process in which sexual intercourse, several forms of education, gymnastics, calisthenics, all are involved, and finally you get this class. Okay?
तो इस क्लास के अंदर देन ही so what was the point we were trying to make? क्या what was the discussion? सर फिलोसफर के कैरेक्टरिस्टिक्स और वो रूल करेगा केवल रीजन पे ही। तो मैं आपकी बात पे पूछना चाह रहा था कि कोई ऐसा हो सकता है जो केवल रीजन पे ही रूल करे, इमोशंस बिल्कुल ना आए उसको? यही तो बात है। एक तो बात है, मैंने कहा कि when he says कि you have to assume everybody is equal, but then what you are trying to create is a very special class. So logically, men and women both qualify because they are citizens. But in order to be a true philosopher, you know, ruled only by reason and perfect reason, then all feminine qualities have to be set aside. Love, affection, family, children. This is what women normally deal with, you know, more intimately than, let's say, men. So I think calling Plato a feminist is an exaggerated sort of position now being taken by some feminists. I think he was very much into male idealism, you know, the same as Descartes, that the mind must rule the body. The body is emotions, it is urges, it is this, it is that. It's only the mind which is capable of true reflection and finding the truth. So, and the question is, this is what Aristotle says. Fine, if you find someone with these qualities, that's great. But are you going to do it? Are you likely to find it? And he says, very improbable. So let's go for something which is possible, a mixed constitution. नहीं सर, मैंने ये नहीं कहा कि वो फेमिनिस्ट थे, मैंने बस ये कहा था कि फिलोसफर किंग्स के क्वालिफिकेशन के तौर पे उन्होंने ये नहीं कहा कि मतलब जेंडर को जो है या सेक्स को जो है वो ठीक है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो जरा ज्यादा सटल है। वो ये है कि कहा तो यही है, लेकिन जो उनका आइडियल फिलोसफर है उसमें कोई इमोशंस नहीं है, उसमें कोई लव नहीं है, उसमें कोई फीलिंग्स नहीं है, उसमें कोई टेम्पटेशंस नहीं है। तो वो तो बहुत एक मेल किस्म की डेफिनेशन है ना ऑफ द फिलोसफर। यस सर। फेमिनिटी जो है उसकी थोड़ी सी और भी तो है ना, कि बायोलॉजिकली बच्चे पैदा होते हैं उसके जिस्म से, तो वो एक और किस्म का लव पैदा हो जाता है। मर्द तो बदमाश होता है, औरत को वो करके भाग भी जाता है, वी नो दैट, ये आपकी फिल्म में आज भी होता है ये। बट मोस्ट वीमेन डोंट डू दैट, दे गो थ्रू वेरी hardships in life because they are bound by the children. लेकिन प्लेटो की इस थियरी के अंदर औरतें इंक्लूडेड है एट द पॉइंट ऑफ एंट्री, बट एट द पॉइंट ऑफ एग्जिट जहां पे फिलोसफर निकलता है, तो कौन सी औरत है जो बिल्कुल मर्द जैसी क्वालिटीज लेके आएगी कि उसकी फीलिंग्स ही कोई नहीं होगी, तो उसका कोई प्यार ही नहीं किसी से होगा, कोई टेंडरनेस नहीं होगी, ओनली रूल्ड बाय रीजन। तो वो तो मर्द भी मुझे कभी नहीं मिला यार। कौन सा है जो सिर्फ इस तरह का हो? नो, नथिंग ऑफ द सॉर्ट। तो ये दिस इज ऑल वेरी अट्रैक्टिव। प्लेटो इज सो inciting to Plato is enticing, sir, enticing. Yeah, enticing to read because it is so elegant the way he argues. प्लेटो के जो एरिस्टोटल के हैं वो तो नोट्स हैं, वेरी डल टू रीड, बट एक्चुअली बेस्ड ऑन सोशियोलॉजी ऑफ सोसाइटीज। ये फर्क है ना। हाँ जी, अच्छा आगे चले यार, बड़ा मजा आ रहा है आपसे इन बातों पे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि मैंने ये पढ़ाना तो बहुत देर से छोड़ दिया हुआ है। व्हेन आई लेफ्ट अपना Stockholm University, I taught it for 25 years there. Then I've been doing many other things. So once again I'm back into the class. तो कई चीजें तब की पड़ी हुई है ना, आज दोबारा रिन्यू हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट, व्हिच इज द नेक्स्ट स्टेज? सर एक चीज और थी। अच्छा सर, जैसे हमारा इसमें इन्होंने वो स्पेसिफाई किया था ना कि हमारे जैसे उन्होंने सोसाइटी को कास्ट या कम्युनिटी में डिवाइड कर रखा था। एक एरिस्टोक्रेट्स होते थे, दूसरे सोल्जर टाइप के होते थे। एरिस्टोक्रेट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते थे और जो सोल्जर होते थे इम्प्लीमेंट करता। तीसरा होता था कॉमन पीपल। तो एरिस्टोक्रेट वाला जो क्लास है वो फिलोसफर किंग हो गया, जैसे हम समझा रहे हैं। तो जब ये
तो सर जो जब ये आपके वाला ब्राह्मण है ना, जो ब्राह्मण क्लास है वो क्वालिफाई करती है एज फिलोसफर्स, और जो क्षत्रिय हैं वो वॉरियर्स हो जाते हैं, और जो ये बाकी हैं शूद्रा जिनको आप वैश्य हैं वो ट्रेडर्स, रिच फार्मर्स ये आ जाते हैं, और जो हार्ड वर्क करते हैं वो शूद्रा आ जाते हैं, और फिर आपकी एक और क्लास भी तो है ना अनटचेबल्स की। यस सर। वो जब मैं ये लिखता हूँ कहीं तो सारे हिंदू मेरे खिलाफ हो जाते हैं, दे डोंट एक्सेप्ट कि कास्ट सिस्टम इज डीपली एंट्रेंच्ड इन हिंदू सोसाइटी, दे फाइंड ऑल सॉर्ट ऑफ अमेजिंग आर्गुमेंट्स टू आर्ग्यू कि ये तो है ही नहीं, ये तो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा। मैंने कहा यार हम मुसलमान होते हुए जो हमारी गलती है उन पे तो ओपनली आपसे बात करते हैं, आपकी किसी बात पे अगर हम करें तो यू आर ऑलवेज अटैकिंग मी। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मानते ही नहीं वो इस चीज को कि जी परफेक्ट डेमोक्रेसी होती थी, ये होता था वो होता था। और मैंने कहा कहाँ होता था यार, 2500 साल से तो कोई नहीं था। वो गीता के अंदर भी है कि जब कृष्णा को वो उस लड़के ने, पता नहीं वो कौन था, कॉबलर या किसका, वो सीख लिया तीर चलाना, तो देन लॉर्ड कृष्णा ने कहा कि अपना अंगूठा काट दो तुम। Isn't that true? वो तो सर गुरु द्रोणाचार्य थे ना। हाँ जी, एकलव्य आंसर गुरु द्रोणाचार्य। चलें जो भी है तो सही ना। ये गीता के अंदर है कि नहीं ये इंसिडेंट? गीता महाभारत में सर, ये गीता में नहीं सर। नहीं, महाभारत में से गीता जो है जिसके अंदर वर्सेस हैं वो महाभारत से भी तो ली गई हुई है ना, तो वहां पे भी ये चीज, ये स्टोरी मेंशन्ड है बाय द वे। ये मेरे कुछ दोस्तों ने बताया मुझे। हाँ लेकिन महाभारत में ये वाला इंसिडेंट है, गीता में तो सर प्योर फिलोसफी की बात है, उसमें उन्होंने स्टोरीज वगैरह उतना एक्सप्लेन नहीं है, उन्होंने बस फिलोसफिकल थॉट्स दिए हैं उसमें। हो सकता है, आई मीन कई मुझे लोगों ने कहा गीता में भी कास्ट सिस्टम और वर्णा का जिक्र है। वर्णा का जिक्र है सर, बट स्टोरी बस फिर तो फिर है ना। हाँ, तो ये कहना कि ये जिक्र है। अंग्रेजों ने आके और मुसलमानों ने किया, ये नॉनसेंस है भाई। मान लेना चाहिए कि ये हमारे अंदर था। क्यों जी? जी सर, जी नहीं सर, इसमें तो सर मैं आपको अपना ही बताऊं, जैसे मतलब मैं खुद भी ऐसा, मेरे को भी लगता था कि मतलब ये सारा प्रोपेगेंडा है। जब इसको खुद मैंने एक्सपीरियंस किया ना, मतलब गांव में जाकर जब गांव में विजिट करते हो तब आप एक्सपीरियंस करते हो रियल लाइफ, तो आपको लगता है कि हाँ ये सच में एग्जिस्ट करती है। बट जब हम ऐसे शहरों में देखते तो हमें शहरों को देख के लगता है कि हाँ ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये सब कर रहा है। बट इन द सोसाइटी जब आप डीप लेवल में ग्रास रूट पे जाते हो तब आपको ये सारे एक्सपीरियंस करने को पता चलता है कि हाँ ये सच में एग्जिस्ट हो रही है अभी भी। बिल्कुल सही है। असल में रूरल सोसाइटी तो होती है जहां पे ट्रेडिशंस और कस्टम्स का होल्ड टोटल होता है, क्योंकि छोटी सोसाइटी होती है और एवरीबॉडी इज ऑर्गेनिकली कनेक्टेड, तो वहां पे ये सारी चीजें ज्यादा हो सकती हैं। बड़े शहरों में तो ये सारी चीजें लूज हो जाती हैं ना, और फिर मॉडर्न एजुकेशन आ गई, साइंस आ गई, टीवी आ गया, अब तो ये सोशल मीडिया आ गया, तो कहाँ तक आप इन चीजों को, दकियानुसी चीजों को आप डिफेंड करेंगे? So this will go out, will be, I mean, will be superseded by something else, I think, in the years to come. बिल्कुल सही है। वो मार्क्स ने कहा भी था ना कि villages are the idiocy of the village, कि जो villages होते हैं वो कंजर्वेटिव सोच के, रिएक्शनरी सोच का गढ़ होते हैं अक्सर। हाँ, अलबत्ता महात्मा गांधी ने आइडियलाइज किया था विलेजेस को। सेल्फ, ये दो कंट्रास्टिंग पोजीशन है जो मैंने जिन्ना वाली किताब में दोनों मेंशन की है, महात्मा गांधी की और मार्क्स की भी। हाँ जी, आगे चलिए। सर आप कह रहे हैं ना, तो सर गांधी जी ने आइडियलाइज किया था विलेज कम्युनिटी को, और अंबेडकर जी ने कहा था कि इट इज अ डेन ऑफ इग्नोरेंस, मतलब जितनी That's right. I think Ambedkar was right there, absolutely. नहीं, everything which Gandhi ji said is not acceptable, quite simply. वो सिर्फ एक ह्यूमनिस्ट थे जिन्होंने ह्यूमन लाइफ की वैल्यू को बहुत एम्फसिस दिया है। बाकी उनकी जो वो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन के भी खिलाफ थे, पता नहीं क्या क्या मॉडर्न मेडिसिन के खिलाफ थे, तो हाउ कैन यू डिफेंड दैट? हाँ, लाइक सर उन्हीं के बेसिस से हमारा जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव पॉलिसीज है, जो उसमें आता है स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, तो विलेज को उनको वो कितनी प्रायोरिटी देते हैं वो सारा उसी में। चलो अब ये आपकी सोसाइटी कैसे अपनी डायनामिज्म कैसे बनाएगी, दिस हैज टू बी सीन एज टाइम प्रोसीड्स। जी सर नेक्स्ट है टाइमोक्रेसी, मतलब रूल बाय एक, मतलब
दूसरा पैशन है, जैसे पहला पैशन था रीजन, ये दूसरा पैशन है ऑनर। ऑनर के बेसिस पे रूल करेगी। तो ऑनर के बेसिस पे तो वो वॉरियर कास्ट ही हुई ना, हाँ वही वही। कि क्षत्रिय हुए। चले। और सर तीसरा होगा ओलिगार्की, जिनका प्राइम गोल यही होगा कि बस वेल्थ को कंसंट्रेट करना है अपने पास। हाँ। लेकिन ये भी कहना था कि सर वेल्थ को कंसंट्रेट करते हुए थ्रिफ्टी होते हैं और काम को थोड़ा सही से करते हैं, जो एफिशिएंट होते हैं। चले ठीक है, ये भी है, ये भी हम आप देख सकते हैं कि आपकी सोसाइटी में भी जो मनीड क्लास है, ट्रेडिंग क्लास है, उसकी बड़ी पोजीशन है। तो वो, और अब तो बीजेपी की तो सारा होल्ड ही उनका ही है, जैसे मुझे बताया गया है। तो ये तो हुकूमत ही वो ट्रेडिंग कास्ट वालों की है ना। वैसे तो महात्मा गांधी भी थे इसी कास्ट से, लेकिन वो एक और किस्म के बंदे थे। पंजाब के, पाकिस्तान के, लाहौर के सबसे बड़े बेनिफैक्टर जो थे सर गंगाराम, वो बेसिकली बनिया कास्ट से थे। तो जरूरी नहीं कि यू बॉर्न इनटू अ कास्ट यू बिहेव लाइक दैट। ह्यूमन बीइंग्स कैन ट्रांसेंड ऑल दीज थिंग्स एंड बिकम ग्रेट इन देयर ओन राइट। मैं ये बिलीव करता हूँ। हाँ जी। और डॉक्टर अंबेडकर इज अ ग्रेट एग्जाम्पल भाई। उन्हें स्कूल में एक जगह नहीं थे बैठने देते, पता नहीं क्या क्या उनके साथ हुआ है और उनके बड़ों के साथ हुआ है। एंड देन ही बिकेम द मोस्ट एजुकेटेड इंडियन ऑफ हिज ओन टाइम्स। तो अगर मौका मिले तो किसको हु डजंट एक्सेल गिवन अ प्रॉपर अपॉर्चुनिटी? कोई भी कर सकता है। और हमने देखा है बड़ों के घरों में बिल्कुल नलायक, डल, स्टूपिड, क्रिमिनल माइंडेड लोग पैदा हो जाते हैं, सो कॉल्ड एरिस्टोक्रेसी के। वो आई नो फेमस फैमिली जिनका एक लड़का लंदन में जाके तो एक फेमस होटल में ठहरा और अपने कपड़े दे दिए वो ड्राई क्लीनिंग के लिए। बाद में पता लगा उसके पास पैसे नहीं है, पकड़ लिया उसे वहां पे। तो वो एक्सपोज हो गया कि इतनी बड़ी वो नवाब और ये और वो, बीच में से वो चोर था। तो ये कहानी होता, इट गोज बोथ वेज। यस। यहाँ पे स्टॉकहोम में बेचारे इंडियन पाकिस्तानी जो आते हैं, तो कोई पंडित है, कोई राजपूत है, वो सबको सफाई करनी पड़ती है शुरू में, बिफोर दे एस्टेब्लिश सम बिजनेस एंड करना पड़ता है यार, मजबूरी है, क्या करें। दे आर जस्ट वर्कर्स, उनके पास कोई और एजुकेशन नहीं है। कास्ट वाइज दे फील वेरी सुपीरियर, लेकिन व्हेन यू आर एन इमिग्रेंट यू स्टार्ट एट द बॉटम, दैट्स ऑल। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। हाँ जी सर ये सब तो सर वैसे भी आउटमोडेड मोड्स ऑफ थॉट नहीं है ये सब, कि इस कम्युनिटी के लोगों को ये काम करना चाहिए। तो सर सबको सभी कुछ काम मैं तो करना इस बिल्कुल बिल्कुल मैं तो इसको बकवास मानता हूँ। कोई भी जो पढ़ लिख जाएगा ना और जो आज की दुनिया को देखेगा, उसको ये समझ आ जाएगी। लेकिन जैसे अभी हमने एग्री किया है कि नोइंग दिस डजंट मीन यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट एंड बिहेविंग अकॉर्डिंगली। ये तो नहीं होता। अगर काश ये हो जाए तो फिर तो जवाब ही नहीं ना, फिर तो आइडियाज एक्चुअली रूल, बट दे डोंट। Interests come in the way, egoism comes in the way, and I think people like being given a superior status and they feel good about it. तो ये सारी temptations भी तो साथ साथ ही है ना हमारे साथ। हाँ जी। मैं आपको अपना किस्सा बताऊं। When I come to Pakistan and I work there, तो वो सब नौकरों को पता लग जाता है कि ये बहुत रहम दिल है, ये वो। हर एक कोई आ जाता है, मेरी बहन की शादी होनी है, कोई कहता है मेरा ये हो गया वो, मैं पैसे दे के। फिर मुझे किसी ने कहा यार तुम प्लीज कैन यू मैनेज के हर बंदा तुम्हें ही आके स्टोरी बताता है कि मेरे घर में ये नहीं है वो नहीं है। तो मैंने कहा यार मैंने एक को दे दिया, मैं दूसरे को किस तरह ना करूं। लेकिन वो मुझे सब धोखा दे रहे होते हैं, आई नो इट। मैं क्या करूं? What can I do? एक क्लासिकल एग्जांपल सुन ले। When I was working at Lums, तो I was alone, so I hired this woman to cook for me and to manage my house. And तो उनसे कोई 2-3 महीने के बाद कहना शुरू कर दिया, सर मैं अपनी कुड़ी दा ब्याह करना है, ते असीं ते बड़े गरीब हाँ, हम बहुत गरीब हैं, मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है। तो मैं हर साल आके
जब समर आता था आई वुड रिटर्न टू स्वीडन. मैंने कहा सारा साल मैंने नहीं अब काम करना, तो आई विल जस्ट वर्क ड्यूरिंग द बेस्ट पार्ट ऑफ द ईयर एंड देन आई गो बैक. सो खैर व्हेन आई वाज लीविंग तो मैंने उसे 25,000 रुपए दे दिए कि वो शादी कर ले. तो मैंने केम नेक्स्ट ईयर तो उसे मैंने दोबारा बुलाया, तो मैंने कहा बताओ तुम्हारी शादी, कि नहीं जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ शादी ਹੁੰਦੀ है तो फिर ਉੱਥੇ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ है ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਿਆਣਾ ਪੈਂਦਾ है. यानी कि आपको पता है कि जब शादी आती है, बारात आती है, तो लोगों को खाना खिलाना पड़ता है, ये है वो है. तो मैंने कहा भाई तुम मेरे से तुम ये प्ली ले रही थी, तुम अमीरों की क्यों अपना उनकी अपना वैल्यूज को परसू करती हो. खैर आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड. एक दिन मैं अपने कोलीग्स के साथ बैठा था, मैंने कहा यार ये लेडी ने मुझे ये कहा है और बाद में ये कह दिया. उन्होंने क्या इश्तियाक, व्हाट सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर यू आर, ये हर साल सब लोगों को ये कहती है, कोई इसे 2,000 दे देता है, कोई 3,000 दे देता है, तुमने 25,000 इसे क्यों दे दिया. तो वो दिस फ्रॉड शी हैड लर्न टू डू विद ऑल इनकमिंग टीचर्स कमिंग टू पाकिस्तान टू टीच. तो people get a bad conscience कि यार ये लोग गरीब हैं and you sort of support them, लेकिन वो धोखा कर रहे होते हैं. So this happens all the time. सर नेक्स्ट है सर डेमोक्रेसी. मतलब एक्चुअली सर मेजरली सही कहा, ये बीच वाले थे ही नहीं, एरिस्टोक्रेसी, डेमोक्रेसी और टिरनी पे ही फोकस था प्लेटो का. हाँ ठीक है यार, डेमोक्रेसी और टिरनी तो एरिस्टोटल ने किया था ये अपना, क्योंकि as far as I know Plato was against democracy. Yes. इस स्टेजेस में जा रहा है ना सर, एरिस्टोक्रेसी करप्ट हुई. लेकिन टिरनी जो है ना, टिरनी तो है एरिस्टोटल के सिस्टम में द फिलोसोफर किंग बिकमिंग अ टायरेंट. तो प्लेटो के सिस्टम में व्हाट डज टिरनी रिप्रेजेंट? सर ये स्टेजेस की तरह जा रही है. बोल अच्छा हाँ. वापस चली जाती है. आई मीन द साइकिल गोज बैक. ओके एग्जैक्टली ओके ठीक है. चलो वी हैव डिस्कस्ड ऑल ऑफ देम. ठीक है ना सर. डेमोक्रेसी में उनका मानना था कि जो बेजल डिजायर्स है ना, जो मतलब फूड, सेक्स, इन सब पे फोकस रहता है लोगों का और सभी के पास फ्रीडम रहती है. लेकिन फिर वही जो आपने कहा था ना कि उसका मानना था कि एजुकेटेड लोग जो काफी हाईली एजुकेटेड है उन्हीं को आगे जाना चाहिए. तो उनका मानना था कि जो पुअर है, एजुकेटेड है, वो पीछे रह जाएगा फिर, लेकिन उनके व्यूज काउंट कर जाएंगे. चलो ठीक है. और आखिरी सर टिरनी है. तो टिरनी तो वही है ना, एक वन पर्सन है एक्सरसाइजिंग अब्यूजिंग पावर, उसके विम बिकम द लॉ. यही है ना, दैट्स टिरनी. व्हेन यू आर अब्यूजिंग योर ऑफिस, सिंपल एज दैट. जी सर. सर एक चीज और थी, उनका ये मानना था प्लेटो का, या सोक्रेटिस का, प्लेटो उनके माउथ से बोल, मतलब सोक्रेटिस के नाम से प्लेटो बोल रहे थे कि हर सिस्टम जो होता है उसमें अपने ही कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं जिनके कारण उसका खुद का डाउनफॉल आ जाता है. वही है ना डायलेक्टिक्स. दैट्स डायलेक्टिक्स. जी सर. सिंपल एज दैट. जी वही है. जी सर. दैट्स डायलेक्टिक्स. देयरफॉर इट इज लाइक अ साइकिल गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन. हाँ. एक सर इसमें ऐसे भी था, जैसे हमने वो 3 क्लास बताए थे ना, उसमें ये भी था कि जब स्टार्टिंग में एरिस्टोक्रेसी में होगी कि अपर के जो 2 क्लासेस हैं, एक जो मिलिट्री सोल्जर वाली, जो फिलोसोफर किंग वाली, वो दोनों कोई एसेट और रिसोर्स को क्या कहते हैं ऑक्यूपाई नहीं कर सकते हैं. जो थर्ड होगी हमारी, जो सिटीजन वाली क्लास होगी, वो अपने लिए भी फूड और रिसोर्सेज कलेक्ट करेगी और ऊपर वालों को भी वही सस्टेन करवाएगी. बट धीरे धीरे जैसे सिस्टम करप्ट होता जाएगा, जब ऊपर वाले भी कहेंगे कि नहीं हमें भी कलेक्ट करना है रिसोर्सेज, तो थोड़ा करप्ट होकर वो फिर चाहे उसमें टाइमोक्रेसी, ओलिगार्ची, फिर डेमोक्रेसी, ऐसे करके धीरे धीरे टायरेंट में हो जाएगा कि सर बस जो ऊपर बंदा वो चाहता है कि सारे रिसोर्सेज मेरे पास ही हो, और वो इतना मतलब जिस तरीके से लोगों को एक्सप्लॉइट करेगा. दैट इज टिरनी. क्यों जी? दैट इज टिरनी. ठीक है ठीक है. एक्चुअली आपने इसको प्लेटो की इन 5 को ज्यादा एम्फेसिस दिया है. नॉर्मली हम तो एरिस्टोटल की जो है ना 3 गुड एंड 3 बैड को पढ़ाते हैं, लेकिन वो एक ही जैसी चीजें हैं. सर अब आप एरिस्टोटल पे आ जाइए कि सर एरिस्टोटल की पॉलिटिक्स की क्या डेफिनेशन थी प्लेटो और सोक्रेटिस के बनस्पत, मतलब इनके अगेंस्ट क्या फिलॉसफी? वो यही था कि पॉलिटिक्स इज to ensure that the enlightened people are in power, but they are not given a carte blanche, they
can do whatever they want. That is why he emphasized constitutionality and law. Actually, even Plato in his later writings did accept the supremacy of laws. But for Aristotle, the philosopher king, if you find one, is the best. But most probable is that you can't, because perfect knowledge for human beings is an impossibility. Therefore, what you then do is go for what is possible. And then what is possible is that the learned should be there, the people with economic interest, property owners should be there, the middle class, and the warrior class, all this should be represented in the parliament, so that they balance one another. And the worst for Aristotle is when, instead of a mixed constitution, it becomes a rule of the masses who are irresponsible. वो कहता है पॉलिटी जो है ना, पॉलिटी जिसमें ये मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन हो इज द बेस्ट, लेकिन वो जब करप्ट हो जाती है तो वो बन जाती है ये क्या है यार, व्हाट इज वो पॉलिटी, डेमोक्रेसी. सो डेमोक्रेसी इज द नेगेटिव फॉर्म. इट मीन्स the power of the masses, and the masses, even for Aristotle, are to be kept at bay because they are rash, they have no economic interest of their own to defend. वो यही है ना, workers of the world unite, you have nothing to lose but your chains. वो वाली बात आ गई ना, कि they would change everything, the old order would be gone, aristocracy would be gone, the philosophers would be gone, the masses will take over and use their power in their own interest. इस तरह की उसकी सोच है. वही वाली बात है, I think Plato हो या Aristotle हो, they were all trained to think कि कोई perfect form हमेशा के लिए नहीं है. For them, nothing is constant. It is things in motion. There is a constant and there is a motion, and this clash is the dialectic. सर जो मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड यूज कर रहे हैं सर, मतलब आप उस पर क्या कहना चाह रहे हो मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन से? कि 3 क्लासेस उसमें होनी चाहिए. एक तो है ना एरिस्टोक्रेसी हो गई, और दूसरे हो गए, हाँ जी, और जो उसमें फिलोसफर भी इंक्लूड कर लेते हैं ना, द अल्टीमेट एरिस्टोक्रेसी भी हो, एरिस्टोक्रेसी, philosophers, aristocracy, and the middle classes. Middle classes, those who own property, who do businesses, who have land cultivated, because all of them have a stake in the state or in the political system. So इनकी हुकूमत जो होगी वो एक दूसरे को बैलेंस करेगी. और वही है ना, जिस तरह बाद में आज के दौर में लोगों ने क्या किया कि पहले हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सारा होता था, फिर वो पावर ट्रांसफर होके हाउस ऑफ कॉमन्स में आ गई है. तो ये तो है ना उसकी डेमोक्रेटिक इवोल्यूशन. लेकिन ये फॉर्मूला पहले भी तो चलता रहा है ना. देयर हैज बीन एन एब्सोल्यूट किंग, देन बिकेम अ किंग बाउंड बाय द मैग्ना कार्टा एंड सो ऑन. The lord, the aristocracy having the main word until the 19th century, and then most power passing on to the House of Commons. लेकिन वो तीनों इंस्टीट्यूशंस अभी तक ब्रिटिश पार्लियामेंट का हिस्सा है. समझ गए आप? तो आई थिंक दिस इज व्हाट एरिस्टोटल हैड इन माइंड, कि ये तीनों क्लासेस का मिक्स जो है ना, नोबिलिटी का, एरिस्टोक्रेसी का और मिडिल क्लासेस का, इज द बेस्ट गारंटी दैट there will always be restraint of these classes against one another. And sir, ये तो वही वाली बात होगी ना सर, कि एरिस्टोटल का होता है ना डॉक्ट्रिन ऑफ, जो मीन था उसका, डॉक्ट्रिन ऑफ द मीन, जिसमें उसने सारा मतलब एवरेज कर दिया सारी चीजों को, सारी क्लासेस इंक्लूड हो जाएंगे. जी, सारी क्लासेस नहीं, ये 3 क्लासेस. और जब ये पावर वहां से निकल के करप्शन हो जाती है ना इन स्टेट्स में, और ये मासिस तक, यानी पॉलिटी जो है वो करप्ट होके डेमोक्रेसी बन जाती है, तो डेमोक्रेसी देन इज
government without restraint. And that's what he's not willing to accept. So he prefers polity, I think. Mixed government. आज के टाइम में सर उसे पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट नहीं कहेंगे, जो आप कह रहे हैं कि अगर डेमोक्रेसी टेकन टू द एक्सट्रीम? हाँ, ये पॉपुलिज्म तो आज का एक फॉर्मूला है ना इन तीनों की, करप्शन का और मैसेज की डिमांड्स का। तो ये आज के दौर में पॉपुलिज्म इज वेरी कॉमन। एक्चुअली देखा जाए तो पॉपुलिज्म हमेशा हुई है, जिसके खिलाफ सोक्रेटिस और प्लेटो की जो सारी थिंकिंग है और एरिस्टोटल की जो इनपुट्स हैं तो इनके खिलाफ ना, पॉपुलिज्म के खिलाफ। हाउ टू क्रिएट गुड गवर्नमेंट, दैट्स द मेन थिंग। परफेक्ट गवर्नमेंट, गुड गवर्नमेंट, बिकॉज पॉपुलिज्म, व्हाट इज पॉपुलिज्म? उसके लिए वो पूरे थे सोफिस्ट हु वुड ट्रेन यू हाउ टू प्ले अपॉन इमोशंस, हाउ टू लर्न, यू नो, वो क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ रेटोरिक सर, आर्ट ऑफ रेटोरिक। द रेटरिक को कैसे पूरी ट्रेनिंग मिलती थी, डेमागोगी की ट्रेनिंग मिलती थी, हाउ टू मूव द मैसेज थ्रू इमोशंस। बट आज के दौर में तो लगता है कि दैट इज व्हाट इज हैपनिंग ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो दिस इज द एज ऑफ पॉपुलिज्म। कुछ लोग कहते हैं दिस इज द एज ऑफ इनफिडेलिटी। All sorts of scandals are possible. Look at what is happening to what Trump did and what Boris Yeltsin did. नहीं, क्या नाम है, बोरिस जॉनसन। और ये सारा हर जगह ऐसे ही हो रहा है। पॉपुलिज्म इज एवरीवेयर। सर आपने वर्ड यूज किया ना सर, डेमागोग, तो प्लेटो और सोक्रेटिस का सारा कहना यही था कि डेमागोग के अगेंस्ट ही उनका मतलब सारा मूवमेंट है कि यही तो मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। डेमागोगी लीड्स टू पॉपुलिज्म ना। जी सर जी, उसके खिलाफ है ना, तभी तो उन्होंने सफे पे इतना दिया है। बिल्कुल सर, वो ये कहना चाहते हैं कि वो सोसाइटी को एक एनलाइटेंड फॉर्म की तरफ ले जाना चाहते हैं। वो नहीं बोलते जो लोग सुनना चाहते हैं, वो बोलते हैं जो लोग को सुनना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। एरिस्टोटल कहता है कि लोग क्या सुनना चाहते हैं वो भी आप पता कर लेना, और क्या बताना है उनको ये भी आपके पास आर्ट होना चाहिए जी। तो वो इसीलिए बैलेंस्ड 3 क्लासेस का जो है ना रूल, उसको वो बेस्ट समझता है। लेकिन एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द ग्रीक्स sort of gets corrupted at some stage and is superseded by another stage. ये एक साइकिल चलती रहती है जी। ये जैसे आपके ही है ना, ये ट्रांसमाइग्रेशन सोल के, the soul keeps coming back but ultimately मोक्षा या पता नहीं क्या वो है करके तो वापसी। तो ग्रीक्स didn't talk about the ultimate मोक्षा, वो लगता है कि सर्कल में जाते थे। उसकी वजह है कि this was a city state, they had no reference of a world beyond that. What they had seen they reproduced in their thinking. लेकिन आज की दुनिया जो इतनी बड़ी है और वो एक और दुनिया है। लेकिन it is fascinating that the Greeks were the first to make the study of the state a matter of reason and evidence. ये बहुत बड़ी बात है। उससे पहले the ruler was a god of some sorts, demigod and so on. ये जो pharaohs थे और ये सारे थे वो half god होते थे, half ruler होते थे। तो ग्रीक्स ने आके इस सारी चीज को, रिलीजन को बस बैकग्राउंड में रख दिया। लेकिन whatever they say is based on reason, logic, evidence, observation, depending कि आप इंडक्टिव लॉजिक इस्तेमाल कर रहे हैं या डिडक्टिव लॉजिक। एरिस्टोटल की सारी जो है ना 3 good 3 bad type of constitution is dependent on studying 158 Greek constitutions and then creating a typology of 3 good and 3 bad. समझ गए आप? इंडिविजुअल केसेस को लेके फिर एक जनरल मॉडल बनाया जाता है। दिस इज द इंडक्टिव लॉजिक।